आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा को डवरू चंद्राबाबू नायडू ने भारतीय तहजीब और तारीख की अहमियत पर जोर देते हुए एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हमें अपने बच्चों को मगरबी किरदारों जैसे स्पाइडर मैन अबीट मैन की कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। उनका मानना ही कि हमारी अपनी तारीख और पुराण ऐसी अजीम मिसालों से भरे पड़े हैं जो किसी भी फर्जी किरदार से कहीं ज्यादा ताकतवर और मुतासिर कुन हैं। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि भगवान राम, भगवान कृष्णा और भगवान शिव जैसी अजीम हस्तियां किसी भी हॉलीवुड सुपर हीरो से कहीं बढ़तर है। उन्होंने रामायण और महाभारत को दुनिया की अजीम तरीन रज़माया दास्तानें करार देते हुए कहा कि उन किताबों में जिंदगी जीने का मुकम्मल फलसफा मौजूद है। चंद्राबाबू नायडू के मुताबिक हमारी नई नस्ल को अपने वर्से पर फख्र होना चाहिए और उन्हें अपनी जड़ों से जड़ा रहना चाहिए। उन्होंने वालिदैन और असातिज़ा पर जोर दिया कि वो बच्चों को भारतीय तारीख की अजमत से वाकिफ कराएं ताकि वो इखलाकी तौर पर मजबूत बन सके। Request all of you, this is very inspiring time, and at the same time Indian families are very important. ఈ సమయంలో నేను ఒక విషయం మీ అందరిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. యువతకు మనం చెప్పాల్సింది ఏదో స్పైడర్ మ్యాన్, బ్యాట్ మ్యాన్ ఇవి కాకుండా మన పురాణాల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మన చరిత్ర, మన పురాణాల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. హాలీవుడ్ సూపర్ హీరోల కంటే మన పురాణంలో ఉండే పురుషులు గొప్పవాడని మన పిల్లలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. సూపర్ మ్యాన్, స్పైడర్ మ్యాన్ కంటే మన హనుమంతుడు బలవంతుడని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. బ్యాట్ మ్యాన్, ఐరన్ మ్యాన్ కంటే మన అర్జునుడు గొప్ప యోధుడని వివరించవలసిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. మన కృష్ణుని మహిమల గురించి, మన శివుడి మహత్యం గురించి యువతకు చెప్పాలి. రాముడికి మించిన పురుషోత్తముడు లోకంలో లేడని రామరాజ్యాన్ని గురించి కూడా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అవతార్ సినిమా కంటే మన మహాభారత రామాయణ గాథలు గొప్పవని మన పిల్లలకు మనం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇవే కాకుండా బకాసురుడు, కంసమామ లాంటి రాక్షసుల గురించి కూడా మన పిల్లలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. ఎవరు మంచివాళ్ళో ఎవరు చెడో ఎప్పటికప్పుడు చెప్పగలిగితే మంచికి చెడుకి వ్యత్యాసం ఉంటుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. भारतीय राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि नई हुकूमत के आने के बाद रियासत में सिर्फ तबाही और वदा खिलाफियों का दौर चल रहा है। उन्होंने हुकूमत पर 3 बुनियादी इल्जामात आयद किए जिनमें इंहिदाम, धमाके और अवामी मसाइल से गुरेज शामिल है। KTR ने कहा कि हाइड्रा के नाम पर गरीब अवाम के आशियाने मुनहदिम किए जा रहे हैं जिससे आम आदमी खौफजदा है। धमाकों का जिक्र करते हुए साबिक वजीर ने सनसनीखेज दावा किया कि कालेश्वरम मंसूबे के मेडीगड्डा बैराज को खुद कांग्रेस के लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि अब कई मकामात पर चेक डैमों को धमाकों से आड़ाया जा रहा है ताकि वहां से रेत की गैर कानूनी स्मगलिंग की जा सके। वदा खिलाफियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम से किए गए इंतखाबी वादों से मुकर चुकी है। KTR ने इंतबाह दिया कि अवाम हुक्मरान जमात की उन सरगर्मियों को खामोशी से देख रहे हैं और वक्त आने पर उन्हें सबक सिखाएंगे। कांग्रेस प्रभुत्वम मार्पु 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 అని చెప్పి ఊదరగొట్టి ప్రజలకు హామీలిచ్చి అధికారంలోకి వచ్చి 2 ఏళ్లయి ఏం జరిగింది, ఏం ఒరిగింది అంటే 3 జరుగుతున్నాయి. కూల్చివేతలు, పేల్చివేతలు, ఎగవేతలు. గంతే. ఈ ప్రభుత్వం ఏందా అంటే కట్టే కొట్టే తెచ్చే అని చెప్పినట్టు కూల్చివేతలు, పేల్చివేతలు, ఎగవేతలు. కూల్చివేతలు హైడ్రాన్ పెట్టి పేదోళ్ళ ఇల్లు కూలగొట్టుడు. మొత్తం ఆల్విన్ కాలనీకి వెళ్ళి మొదలు పెడితే అన్ని బస్తీలలో ఇల్లు కూలగొట్టుడు తప్ప ఒక్క హైదరాబాద్లో ఒక్క ఇటుక పెట్టింది లేదు, ఒక ఇల్లు కట్టింది లేదు. ఇందిరమ్మ పేరు చెప్పుకొని బతుకుడు తప్ప ఒక్కటంటే ఒక్కటి మంచి పని మాత్రం గరీబోళ్లకు చేసింది లేదు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక. రెండోది పేల్చివేతలు. ఈ లంగలే ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళే ఆ కాళేశ్వరంలో ఉన్న మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ని వీళ్ళే వెలిచిండ్రు. తర్వాత ఇప్పుడు మన చెక్ డ్యాములు వెలుస్తున్నారు. ఒకటి కాదు 2-3 వెలిచిండ్రు ఇప్పటికే. కేసీఆర్ గారేమో కడితే ఈ దరిద్రులు వచ్చిన తర్వాత పేల్చి పారేస్తున్నారు చెక్ డ్యాములు. ఇక మా వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఆయన ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలనే కేసీఆర్ గారు దేవరకద్ర, మహబూబ్ నగర్, వెనుకబడ్డ నియోజకవర్గం అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ఒకటే కాన్స్టిట్యున్సీలో దగ్గర 10-20 చెక్ డ్యాములు, 36 చెక్ డ్యాములు కట్టించిండు. వీళ్ళ ముఖాలకు
వీళ్ళ ముఖాలకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చినాక ఒక చెరువు కట్టింది లేదు, ఒక చెక్ డ్యామ్ కట్టింది లేదు, ఒక ఇటుక పెట్టింది లేదు. కానీ ఉన్న చెక్ డ్యామ్లను ఇవాళ బాంబులు పెట్టి పేల్చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు ఇసుక తోడుకొని కష్టమవుతుందంట, ఇసుక తోడుకొని దొంగతనంగా అమ్ముకునేందుకు కష్టమవుతుందంట. నీళ్ళు ఆగితే ఇసుక తీయరాదు కదా, అందుకే నీళ్ళు ఆగకుండా చేసి చెక్ డ్యాములు పేల్చేసి ఇసుక తవ్వుకొని దొంగతనంగా అమ్ముకొని మరి ఢిల్లీకి కప్పం కట్టాలి కదా, ఆ పని చేస్తున్నారు. అందుకే మేము అంటున్నాం, ఎగవేతలు, కూల్చివేతలు, పేల్చివేతలు తప్ప ఈ 2 ఏళ్లలో సాధించిందేం లేదు. ఇక ఎగవేతల గురించి అయితే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఆయన పేరు మార్చుకోవాలా, యనుమల రేవంత్ రెడ్డి కాదు, ఎగవేతల రేవంత్. हैदराबाद के मशहूर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में क्रिसमस की तातील के मौके पर सयाहों का गैर मामूली हुजूम देखने में आया, जहां तकरीबन 23,440 सयाहों ने जंगली हयात का दीदार किया। रवां साल आम तातीलात के दौरान चिड़ियाघर की सैर करने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद का ये चिड़ियाघर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली तकरीबन 199 जंगली जानवरों की अक़साम का मस्कन है, जो बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए है। सयाहों की बड़ी तादाद की आमद को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने टिकटों की फराहमी के लिए इजाफी काउंटर्स खोले थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के लिए इजाफी मुहाफिजों और रजाकारों को भी तैनात किया गया था, ताकि नज़्म और ज़ब्त बरकरार रहे। चिड़ियाघर के हुक्काम ने बताया कि सयाहों ने शेर, हाथी और मुख्तलिफ परिंदों के अहातों में काफ़ी वक्त गुजारा और तातील का भरपूर लुत्फ उठाया। इजाफी रजाकारों ने लोगों की रहनुमाई की और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद के बावजूद इंतजामी उमूर बखूबी अंजाम दिए गए, जिस पर सयाहों ने इत्मीनान का इजहार किया। ये मकाम शहर के खूबसूरत तफरीही मकामात में से एक है, जहां कुदरती माहौल सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करता है। रियासत तेलंगाना के जिला विनापर्ती में किसानों ने हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी में ताख़ीर के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उनकोर के करीब अहम शाहरा पर बड़ी तादाद में जमा होकर किसानों ने रास्ता रोको एहतजाज किया और सड़क पर कांटेदार झाड़ियां डालकर ट्रैफिक की रवानी रोक दी। मुश्तइल किसानों का कहना ही कि 1 माह का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद सरकारी मराकज़ पर उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिन किसानों से धान खरीदा गया है, उन्हें भी अभी तक रकम की अदायगी नहीं की गई। मुजाहिरीन ने इंतहाई दुख के साथ बताया कि उन्होंने कई बार मुताल्लिका उहदेदारों को अपनी तकलीफ से आगाह किया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं हुई। खिले आसमान तले पड़ी धान की फसल खराब होने के खदशे ने किसानों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। इस एहतजाज की वजह से शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने और आला हुक्काम से बात करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद एहतजाज खत्म हुआ। रियासत तेलंगाना के जिला महबूब आबाद में यूरिया खाद की शदीद किल्लत की वजह से किसानों की मुश्किलात में काफी इजाफा हो गया है।
महबूबाबाद मंडल के जरी दफ्तर के बाहर हुक्काम ने एक अहम नोटिस चस्पा किया है, जिसमें वाजे किया गया है कि फ़ी-उल-हाल यूरिया की फराहमी मुमकिन नहीं है। मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर ने किसानों को मशवरा दिया ही कि वो यूरिया की उम्मीद में सोसाइटी के दफातर आराइथू सेवा केंद्रों के बाहर जमा ना हों और अपना वक्त ज़ाय न करें। यूरिया न मिलने की इत्तला पर किसानों में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि फसलों के लिए इस वक्त खाद इंतहाई ज़रूरी है। हुक्काम का कहना है कि स्टॉक दस्तयाब न होने की वजह से तकसीम का अमल रोक दिया गया है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यूरिया के नए लोड मंगवाए जाएं ताकि वो अपनी काश्तकारी जारी रख सके। इस किल्लत की वजह से कई मकामात पर किसानों और उहदेदारों के दरमियान तकरार के वाक़यात भी पेश आए हैं। इंतजामिया ने यकीन दिलाया ही कि जैसे ही नई खेप आएगी किसानों को इत्तला दे दी जाएगी। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला कोनासीमा के राजौल मंडल में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया है। किडली गोलापालम के करीब दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के दरमियान होने वाले शदीद तसादुम में 20 साला नौजवान इकोमर्ती अनुइश जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। एनी शादान के मुताबिक टुकर इतनी शदीद थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह तबाह हो गईं और नौजवान कई फुट दूर जा गिरा। इस हादसे में मजीद 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर मकामी लोगों की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मियों में से 2 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और उन्हें आला तिब्बी इमदाद के लिए बड़े अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। नौजवान की मौत की खबर सुनते ही उसके घर में कोहराम मच गया और इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने हादसे का केस दर्ज कर लिया है। వెనకాల కొట్టాడు, సెంటర్లో కూడా కొట్టలే. వాళ్ళు రాంగ్ రూట్లో వచ్చారు. ఒకరి మీద ఒకరు పడిపోయారు. रियासत आंध्र प्रदेश के जिला नंदियाल में एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें हैदराबाद के रिहायशी 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया आला गड्ढा मंडल के नीलागटला गांव के करीब पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी जानिब से आने वाली बस में जा घिसी। बताया जाता है कि ये तमाम अफराद हैदराबाद के इलाके निजामपेट के रिहायशी थे और वो तिरुपति में एक तकरीब में खाना फराहम करने केटरिंग की खिदमात अंजाम देने के बाद वापस लौट रहे थे। पुलिस ने महलूकीन की शनाख्त गिंडव राव, सिद्धार्थ नरसिम्हा और सुतपा के तौर पर की है। इस खौफनाक तसादुम में 2 दीगर अफराद शरावन और शिवा साई शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। हादसा इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और लाशों को बाहर निकालने में पुलिस को काफी जिदोजहद करनी पड़ी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं और लवाहिकीन को इत्तला दे दी गई है। इस वाकये के बाद निजामपेट के इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। अरे
వన్ అంబులెన్స్ వెళ్ళిపోయారు సార్. 2-3 బండ్లు ఉన్నాయి వచ్చేప్పటికి. అంతా ఒకటే ఫ్యామిలీ నేనమ్మా. అబ్బాయి रियासत तेलंगाना के जिला जगतियाल के मिलियला मंडल में वाक़ई मशहूर मुक़द्दस मकाम कुंडा गट्टू के घाट रोड पर एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक अकीदतमंदों का एक गिरोह भगवान के दर्शन के बाद ऑटो में सवार होकर वापस लौट रहा था कि अचानक थलवामप्रिटो के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक नाकाम होने की वजह से तेज रफ्तार ऑटो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर ही उलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एनी शादान का कहना ही कि घाट रोड पर खतरनाक मोड़ होने की वजह से ऑटो कई बार पलटते हुए रुक गया, वरना कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। मकामी अवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया ही कि घाट रोड पर गाड़ियों की रफ्तार और उनकी हालत की बाकायदा जांच की जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोका जा सके। रियासत तेलंगाना के जिला महबूब आबाद में यूरिया खाद की शदीद किल्लत ने किसानों को सख्त आजमाइश में डाल दिया है। जिलाई मरकज में वाक़ई प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेंटर (PACS) के बाहर सैकड़ों किसान हड्डियां गला देने वाली सर्दी के बावजूद रात देर गए से ही कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना ही कि अगर वो रात भर इंतजार न करें तो उन्हें अगले दिन खाद मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। कई बुजुर्ग और ख्वातीन किसान भी इस कपकपाती डांसेस में खिले आसमान तले बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर हैं। मुश्तइल किसानों ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि फसलों की काश्त के अहम मरहले पर यूरिया की अदम दस्तयाबी उनके लिए माशी तबाही का बाइस बन सकती है। कई मकामात पर किसानों ने अपनी जगह मुख्तस करने के लिए कतारों में अपने जूते और पत्थर रख दिए हैं। मकामी रिहायशियों ने बताया कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से अफरातफरी का माहौल पैदा हो रहा है। किसानों ने मुतालबा किया ही कि यूरिया की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि उन्हें मजीद जिल्लत और तकलीफ का सामना न करना पड़े। కార్డు ఇచ్చి ఇవాళ నెల రోజు కానీ తిరిగి 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 ఈ కాళ్ళు పోయినాయి. బండికి 500 పెట్టా, పెట్రోల్కి 500 పెట్టా, 500 పెట్టినా, మందు బత్తలేదు. ఇగో మాకు బస్తాలు లేవు, కార్డుండే బస్తా ఇస్తారని వాళ్ళు అంటారు. చచ్చిపోతావా? పాత రోజులు వచ్చినాయి.
పొరపాటు పడదా మీరు వస్తారనుకోవాలడా रियासत तेलंगाना के जिला मीचल के तहत आने वाले अनुजीगोदा इलाके में वाक़ भारत पेट्रोल पंप पर आज इस वक्त अफरातफरी मच गई जब वहां मौजूद एक मारुति वैन में अचानक आग भड़क उठी। पोचारम आईटी कॉरिडोर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आने वाले इस वाक़ये में देखते ही देखते आग के शोलों ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। पेट्रोल पंप जैसी हसास जगह पर आग लगने की वजह से वहां मौजूद लोगों और अमले में शदीद खौफ व हरास पैदा हो गया और लोग अपनी जानें बचाकर भागने लगे। खुशकिस्मती से पंप के अमले ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए आग बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल किया और आग को मजीद फैलने से रोक दिया, जिससे एक बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान होते होते रह गया। अभी तक आग लगने की वाज़ेह वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम शुबा जाहिर किया जा रहा है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई है। ఇంకా టైర్ లాంటికి ఇంకా కోస రోడ్ ఎక్కిన టైర్ లాంటికి అనుకో పెట్రోల్ పంప్ ఎదురుగా అవి రోడ్ रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के इलाके नीलाकंटा में एक सफाक शौहर ने शक की बना पर अपनी ही बीवी को बच्चों के सामने जिंदा जलाकर हलाक कर दिया। इत्तलात के मुताबिक जिला नलगंदा से ताल्लुक रखने वाले वेंकटेश और तरियनी ने मोहब्बत की शादी की थी और वो अपने 2 बच्चों के साथ हैदराबाद में रहाइश पजीर थे। वेंकटेश अपनी बीवी पर मुसलसल शक करता था, जिससे तंग आकर वो अपने मायके चली गई थी। मुलजिम ने तब्दीली का झूठा वादा करके इसे वापस बुलाया और चंद ही दिनों बाद इस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस हौलनाक मंजर के दौरान जब उनकी कमसुन बेटी ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो संदिल बाप ने इसे भी भड़कते हुए शोलों में धकेल दिया। चीखो पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए और दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम तरियनी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जबकि बच्ची मुजिजाना तौर पर महफूज रही। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें मुलजिम को वारदात के बाद फरार होते देखा जा सकता है। नीलाकंटा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सफाक शौहर को हिरासत में ले लिया है। इस वाकये ने पूरा इलाके को दहला कर रख दिया है। हैदराबाद के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट के करीब विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर आज बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने में आया, जिसकी वजह से हजारों मुसाफिर घंटों परेशान रहे। रियासत में मुसलसल ततीलात के आगाज की वजह से लोग बड़ी तादाद में अपने आबाई मकामात और तफरीही मकामात की तरफ रुख्तन सफर बांध रहे हैं, जिसके नतीजे में शाहराह पर गाड़ियों का गैर मामूली दबाव बढ़ गया है। खास तौर पर निजी कारें, बसें और दीगर गाड़ियां कई किलोमीटर तक कतारों में खड़ी नजर आईं। ट्रैफिक की इस सुस्त रफ्तारी ने मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और सफर का दौरानिया मामूल से कई गुना बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए इजाफी अमला तैनात कर दिया है और गाड़ियों की आमद और रफ्त को बहाल करने की कोशिशें जारी है। हुक्काम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया ही कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और मुमकिन हो तो मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। तवक्को ही के ततीलात के खत्म होने तक शाहराह पर यही सूरत-ए-हाल बरकरार रहेगी। पुलिस की जानिब से शाहराह पर गश्त भी बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटा जा सके। रियासत तेलंगाना के जिला महबूब आबाद में वजीर आला के मुशीर ओम नरेंद्र रेड्डी की सालगिरह की तकरीब के दौरान एक खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां स्कूली बच्चे एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए।
कि समोदिरम जरी मार्केट में मुनक्किदा इस जश्न में कांग्रेस MLA मुरली नाइक के हामियों ने जबरदस्ती कई तालिब इल्मों को मदऊ किया था। केक काटने के दौरान आतिशबाजी की वजह से आग की चिंगारियां वहां मौजूद मासूम बच्चों पर गिरने लगे, जिससे तकरीब में अफरातफरी मच गई। इंतहाई अफसोस की बात यही कि जब बच्चे खौफजदा होकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, MLA मुरली नाइक इस खतरनाक सूरत हाल को संजीदगी से लेने के बजाय कहे लगाते हुए नजर आए। इस वाकये की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अवाम में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। वालिदैन ने सवाल उठाया ही कि सियासी जश्न के लिए बच्चों की जिंदगियों को खतरे में क्यों डाला गया। मकामी कायदीन ने इस लापरवाही की मजम्मत करते हुए MLA के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खुशकिस्मती से कोई बच्चा शदीद जख्मी नहीं हुआ, लेकिन ये वाकया सियासी नुमाइश की बदतरीन मिसाल बन गया है। हैदराबाद पुलिस ने पुराने शहर के इलाकों में अमन अमान को बरकरार रखने और जराइम पर काबू पाने के लिए DCP साउथ जोन किरण खारे की निगरानी में एक बड़े पैमाने पर तलाशी का ऑपरेशन मुनज़्ज़म किया। इस खुसूसी मुहिम के दौरान चारमीनार और कमेंटीपुरा पुलिस स्टेशनों की हुदूद में शदीद चेकिंग की गई। पुलिस टीमों ने मुश्तबा मकामात की तलाशी ली, गाड़ियों की जांच की और इलाके में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की निशानदेही की। इस कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात से शराब की बोतलें भी बरामद हुईं, जिन्हें पुलिस ने फौरी तौर पर जब्त कर लिया। DCP किरण खारे ने खुद मौके पर मौजूद रहकर ऑपरेशन का जायजा लिया और उहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की कि अवामी मकामात पर शराब पीने और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मुहिम का मकसद शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना और समाज दुश्मन अनासिर की सरकोबी करना है। पुलिस ने अवाम से अपील की ही कि वो अमन अमान की बरकरारी में पुलिस के साथ ताउन करे। हुक्काम के मुताबिक पुराने शहर में इस तरह की अचानक तलाशी की मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। क्या ये बीयर बोतल मिलेगी? तुम्हारे बस्ती में है ना, नामा बोलो, 2-4 नामा बोलो, किसके पास करता मालूम रख ले। चलो ठीक है, बाद में इन्फॉर्मेशन दूंगा। कैमरे के सामने नहीं तो नहीं। ओके, कितना ये तो प्रेस तो भी दिख रहा पूरा का पूरा। पीछे दावत हो रहा साहब। हाँ ठीक है ओके। 10 रुपए के लिए करते साहब हम लोग, मेहरबान नहीं है मेरे गले में, मैं अकेले करता साहब। पीछे दावत हो रहा है, ये हैवाट से सर वो छठी की दावत है, वो दावत में ऐसा हुआ। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में पुलिस ने असलहा की गैर कानूनी खरीद और फरोख्त करने वाले एक बैन रियासती गिरोह का कामयाबी से पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 3 खतरनाक अरकान को गिरफ्तार किया गया है, जो रियासत में जदीद हथियार फराहम करने में मुलव्वस थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 5 देसी रिवाल्वर, 30 जिंदा कारतूस, 1 खाली मैगजीन और 1 तलवार बरामद की है। दिलचस्प बात यही कि इस बड़े गिरोह का सुराग एक घरेलू तनाज़ो के दौरान मिला, जहां एक शख्स ने अपनी बीवी को बंदूक दिखाकर धमकाया था। मुतासिरा खातून की शिकायत पर जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो असलहा सप्लाई करने वाले इस मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकिशाफ हुआ। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये गैंग दूसरी रियासतों से हथियार लाकर मकामी मुजरिमों को फरोख्त करता था। इस गिरफ्तारी से इलाके में बढ़ते हुए असलहा के कल्चर को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। जिलाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद से पूछगछ जारी है ताकि ये मालूम किया जा सके कि उन्होंने अब तक कितने लोगों को हथियार फरोख्त किए हैं। इस कामयाब ऑपरेशन पर आला हुक्काम ने मुताल्लिका पुलिस टीम की सिताइश की है।